ہراس کا شکار ہوئی ہو, جس کو گھر میں خرچہ نہیں ملتا, جس کو پڑھایا لکھایا نہیں گیا, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, کیا ان میں سے کوئی عورت آپ کو ایسی لگی ہے؟ کیونکہ جس بندی کو گھر میں خرچہ نہیں ملتا, جس بندی کے گھر میں غربت ہے, اس کو تو باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ عورت مارچ کرنا ہے یا مانگنا ہے. اسے فکر لگی ہوئی ہے میں نے اپنے بچے پالنے ہیں, میں نے اپنا گھر چلانا ہے, میں نے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے, مجھے ہراس کیا جا رہا ہے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ نہیں نکلتا. میرا جسم میری مرضی کا مطلب انہوں نے عورت نے ڈال دیا ہے, ساری عورتوں نے اپنے ہسبینڈز پہ کہ میرا شوہر ہے وہ مجھے نہیں کہہ سکتا. یہ چن کے ڈال دیا کہ ہسبینڈ ہے, شوہر ہے, وہ آئے گا, جوتے خود اٹھائے گا, روٹی خود پکائے گا. بھائی وہ اگر سارے کام خود کرے گا تو آپ بھی جاؤ ساتھ کماؤ. وہ خواتین کہاں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں, جس کے لیے یہ لوگ آئے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ جن کے یہ کس چیز کا وہ کری ہے؟ عورت مارچ کس چیز کی آزادی چاہتی ہے بھائی؟ کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ اگر میں چاہ رہا ہوں کیا نعرہ لگ رہا ہے بتا دیں. میرا جسم میری مرضی, اگر میرا جسم ہے تو میری مرضی ہوگی, میرے ہمسائے کی مرضی تو نہیں ہوگی, یا آپ کی مرضی تو نہیں ہوگی. اس ٹاپک پہ بولنا نہیں چاہتی, اگر میں بولوں گی نا تو مجھے لگتا ہے کہ میرا سر جو ہے نا وہ میرے دھڑ پہ نہیں رہے گا. آزادی کس سے چاہیے؟ اس باپ سے چاہیے جس نے آپ کو 26 سال پالا ہے, 24 سال پالا ہے, جس نے 23 سال, جس نے آپ کو ایک کپڑا پہننے کے لیے دی ہے, جس نے کھانے کے لیے روٹی دی ہے. آپ بتائیں پنجاب اسمبلی, نیشنل اسمبلی میں مخصوص نشستیں کس کی ہوتی ہیں؟ خواتین. جب بھی کوئی ویلفیئر کام ہوتا ہے آپ بتائیں کبھی یہ کہا گیا کہ یار بنیادی شادی کرا دیں, یار بچیوں کی شادی کرانی. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین عورت مارچ پہ موجود ہیں اور میں آپ کو عورت مارچ کا اور وومن امپاورمنٹ کا اصل فیس دکھاؤں گا. میرے پیچھے میری بہنیں موجود ہیں اور صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ڈیوٹی پر موجود ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ ہماری یہ بھی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جو ہے خواتین کے حقوق مانگنے آئی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو وومن امپاورمنٹ ہے اس کا اگر میں آپ کو ریئل فیس اگر دکھا سکتا ہوں تو وہ میری بہنیں ہیں. وہ یہ میری بہنیں ہیں جو اپنے گھر سے نکل کے میری ماؤں بہنوں کے لیے سارا دن روڈ پر موجود ہیں, اپنا رزق حلال کر رہی ہیں اور جدوجہد کر رہی ہیں, اور پاکستان کے معاشرے میں اپنی خدمات اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اور یہاں پہ آپ کو ایک تضاد دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ان کی آج بھی چھٹی نہیں ہے, ان کو عورت مارچ والے دن بھی چھٹی نہیں ہے, اور دیکھیں ان کو چاہیے بھی نہیں ہے, انہیں وہ چاہیے بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ کچھ لوگ ہیں جو میرا خیال ہے کہ مسئلے ہیں لیکن شاید اس کو ریپرزینٹ ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہی, اور 10 سال میں بجائے کہ اس مارچ کی تعداد بڑھتی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. اور میں اگر ذاتی طور پہ اپنا تھوڑا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں تو ان لوگوں کی جو انتظامیہ ہے اس کو گرومنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ یہاں پر آ کے کسی شخص کو کنونس نہیں کرنے آئے. جب تک آپ لوگوں کو ان کے اختلافات کے جوابات نہیں دیں گے تو آپ کیسے لوگوں کو, اپنے ناقدین کو اپنے ساتھ یہاں پہ بٹھائیں گے؟ آپ جب تک لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تب تک آپ ان کو مطمئن نہیں کر پائیں گے. بہرحال یہ دیکھیں کہ یہ تضاد ہے, ایک یہ ہماری بہنیں ہیں جو وومن امپاورمنٹ کا فیس ہیں, اور دوسری جو یہ کوشش کر رہی ہیں پریزنٹ کرنے کی کہ ہم خواتین کی حقوقی علمبردار ہیں, جبکہ خواتین کو نہیں اپنی علمبردار سمجھ رہی. اور یہاں پہ سینکڑوں مسائل ہونے کے باوجود یہاں پہ وہ خواتین جس کو اس معاشرے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نہیں آ پا رہی. یہاں پہ ایک بھی خاتون وہ نہیں ہے جس کو کوئی ظلم کیا گیا ہو, جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, جس کی شادی زبردستی کروا دی گئی. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میں بھی دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ بھی وہ دھکم پہل ہو رہی تھی کہ آپ عورت نہیں ہیں, خاتون نہیں ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو عورت مارچ میں شرکت کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں, میں عورت مارچ میں شرکت کے لیے نہیں آئی, میں عورت کوریج کے لیے آئی ہیں؟ کوریج کے لیے آئی ہوں, اور میں عورت مارچ کے اگینسٹ ہوں. یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہے آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. کیا ہوا کیا تھا وہ دیکھ رہا تھا؟ طریقہ کار جو ہے وہ مناسب نہیں تھا, طریقہ کار غلط تھا. کیا ہوا کیا تھا؟ آپ طریقے کے ساتھ مطلب یہ آپ کور نہیں کر سکتی, آپ ہم سے بات نہیں کر سکتی. جب ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے تو آپ یہاں آئے کیوں؟ آپ نے یہ مجمع لگایا کیوں؟ جب آپ آپ نے لگایا, میڈیا کو کال ملی ہے, میڈیا اکٹھا ہوا ہے, میڈیا سوال کرے گا, آپ نے جواب دینا ہے تاکہ لوگوں تک میسج آ سکے. آپ لوگ آپ نے ایک بینر اٹھایا ہوا ہے, ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا اور آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں. کیا کارڈ ہے؟
कार्ड्स पे लिखा हुआ है कि मर्द जो है वो किचन में नहीं जाएगा, औरत अपना खाना खुद पकाए। तंजिया लिखा हुआ। यानी कि मर्द अपना खाना खुद गर्म करेगा, औरत मर्द के लिए खाना बनाएगी नहीं या गर्म कोई नहीं नया करेगी। नारा इस बार देखा है? क्योंकि हर बार कोई ऐसा नारा लगाते हैं जो इस बार मार्च से भी ज्यादा मशहूर हुआ था। इस बार जो ज्यादातर मैंने नारा देखा है वो ये देखा है कि वो औरतें जो जेलों के अंदर हैं उनके हकूक के लिए बात की जा रही है, तो ठीक ये है। थोड़ी सी पॉजिटिव चीज लगी है। बाकी नारे सारे वही पहले अच्छा मुझे वाले हैं। बताएं कि औरत को मसाइल क्या क्या हैं, क्योंकि आप एक वर्किंग लेडी हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा सबसे पता पहला सवाल तो ये है कि ये जो औरतें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, क्या ये औरत मार्च के लिए इकट्ठी हुई हैं? ये औरतें किन औरतों के साथ और इजहार किसके लिए इकट्ठी हुई हैं? मैं बता रही हूँ आपको कि ये औरतें अगर किस औरत के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठी हुई हैं? क्या इनमें से कोई औरत आपको लगती है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हो, जिसको घर में खर्चा नहीं मिलता, जिसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया, जिसके पास गाड़ी नहीं है या जिसके पास अखराजात नहीं, क्या इनमें से कोई औरत आपको ऐसी लगी है? क्योंकि जिस बंदी को घर में खर्चा नहीं मिलता, जिस बंदी के घर में गुर्बत है, उसको तो बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि औरत मार्च करना है या मांगना है। उसे फिक्र लगी हुई है, मैंने अपने बच्चे पालने हैं, मैंने अपना घर चलाना है, मैंने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। अब ये वो सारी औरतें हैं जिनके पास दुनिया की तमाम आसाइशें मौजूद हैं, तो ये उन औरतों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि घरों में बैठी हैं और जिनके हस्बैंड उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहते और अपनी बीवियों के अखराजात पूरे कर लेकिन रहे हैं। औरत के मसाइल भी बहुत ज़्यादा है, आप ये भी औरत के मसले पे तो बात नहीं ना कर रहे, औरत के मसले पे बात नहीं हो रही। तो ये आपको क्या लगता है कि ये औरत का मसला नहीं है कि खाना मर्द खुद गर्म करे, औरत का मसला और है, तालीम नहीं मिल पा रही, तालीम नहीं मिल जायदाद पा में हिस्सा रही, नहीं मिल पा रहा, जायदाद में हिस्सा नहीं मिल पा रहा। मसला ये नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती हो रही है, मुझे हरास किया जा रहा है, उस मसले पे नहीं बात कर रहे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये नहीं निकलता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब इन्होंने औरत ने डाल दिया है, सारी औरतों ने अपने हस्बैंड्स पे कि मेरा शौहर है वो मुझे नहीं कह सकता। ये सारे सवाल जवाब सारे मर्दों के लिए नहीं रह गए, ये चुन के डाल दिया कि हस्बैंड है, शौहर है, वो आएगा, जूते खुद उठाएगा, रोटी खुद पकाएगा। भाई वो अगर सारे काम खुद करेगा तो आप भी जाओ साथ कमाओ, फिर सारा कुछ शेयरिंग में करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखिए अब यहाँ पे लाल रंग के हाथ का निशान जो है वो छोड़ा जा रहा है और अब तकरीबन औरत मार्च इख्तिताम पे पहुँच चुका है और आप ये देख रहे हैं कि एक वॉल बनाई है जिसके ऊपर हर शख्स आके अपने नज़रियात के मुताबिक अपने थॉट्स को लिख रहा है और साथ जो है अपने हाथ के निशान छोड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान सलाम कैसे जी। हैं आप? खैरियत बिल्कुल से? ठीक क्या जी। इसमें ग्रामी है आपका? अबूजर माधू। अबूजर माधू। जी। मैं वेख्या ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਆਏ ਇਸ ਵੀ जी मैं औरत मार्च भी चाया सा ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤਦਾਦ ਵਧੇ ਇਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ? ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ Genuine ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੂਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਰੀ ਟੈਨੀ ਲੈ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇhtਜਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਸੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਰੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲੋਗਨ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਤੇ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 3 ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ कैद है। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं? खैरियत से हैं? कहाँ आए हुए थे? हम मार्केट में आए हुए थे। हाँ जी, कहाँ आए हुए थे? हम लेडीज मार्केट में आए हुए थे। मार्च में? अच्छा, यहाँ पे क्या आपने क्या महसूस किया इस हवाले से, थोड़ा सा बताएं मार्च के हवाले से, जो नहीं आ सके उनको। ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारे हक के लिए है, हमें हर चीज़ के लिए दबाया जाता है, इससे ये है कि हमें और ज़्यादा मुश्किलात पेश होती है। तो अगर ये है हमें हौसला मिल जाए कि हम कुछ कर सकते हैं। ये बताएं कि बतौर औरत आपको इस मुआशरे में क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा मसाइल है, घरेलू मसाइल होते हैं, काफ़ी मसाइल होते हैं। अपने साथ किस किस को लाई हैं? मेरी सिस्टर है बड़ी और मेरी आंटी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? आतिका शेख। आतिका शेख। अच्छा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। औरत मार्च में आई हुई हैं? बिल्कुल आई नहीं हुई थी, लेकिन हमारी एंकर यहाँ पे प्रोग्राम करने आई हुई थी, मैं उनको लेने आई थी। आपने भी देखा जो सब चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। मैंने देखा आपके साथ बदतमीजी की जा रही थी, वो क्या हुआ क्या था? आप भी खातून हैं, आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, आपकी भी तमाम हकूक़ हैं, आपको भी तमाम हकूक़ मिलने चाहिए। क्या हुआ? औरत मार्च वाले आप पर क्यों नाराज़ है, आपसे क्यों लड़ रहे थे? पहली बात ये, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी को राइट होता है अपना ओपिनियन देने का। मैंने सिर्फ अपनी राय दी जो कि मुझे ठीक लगी, और एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान वही होता है कि जो उसकी अगले की भी सुने और अपनी भी बात करें। हर किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट दे। हमें उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें हमारी ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि हम उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं या कुछ इस तरह का कर रहे हैं, या आप उनके नजरिया से मुख्तलिफ सोचती हैं, हाँ, तो फिर क्या हुआ? नहीं कहा, लेकिन अपनी ओपिनियन दी है। तो खवातीन होके अफसोस इस बात का है कि पढ़ी लिखी खवातीन होके पीछे से नारे लगा रही है व्यूज के लिए है, और आपको भी इतनी बातें की उन्होंने। नहीं, उसमें सबसे मुझे बुरा ये लगा कि अगर एक खातून और मैं आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे हैं या इंटरव्यू हो रहा है, डिस्कशन हो रही है, उसमें कोई भी पढ़ा लिखा शख्स हरकत नहीं कर सकता कि पीछे से इतना बड़ा धोतू और माइक उठा के या स्पीकर उठा के बीच में आके बदतमीजी करे। बच्चा होता है ना, वो भी ये काम नहीं करता, उसको भी इतनी तमीज होती है कि ये भाई कोई बात कर रहा है ना तो इस तरह बात नहीं करनी। इनको भी डर है या इस तरह की हरकतें करनी है, किसी चीज़ का डर है। वो खवातीन कहाँ है जो घर में बैठी हैं, जिसके लिए ये लोग आए हैं, वो कहाँ है? जिनके ये किस चीज़ का वो कर रही है? औरत मार्च किस चीज़ की आज़ादी चाहती है भाई? इनसे ये अच्छा, आज आपने जो औरत मार्च जितना भी देखा, आपने क्या महसूस किया? आपकी क्या फाइंडिंग्स थी? क्योंकि आप खुद बता रही हैं कि बतौर रिपोर्टर आप यहाँ पे कवरेज भी करती रही हैं, आपकी दोस्त भी यहाँ पे कवरेज कर रही थी। आपकी फाइंडिंग क्या है आज की औरत मार्च को लेकर? औरत मार्च करने आई हैं तो भाई कोई स्ट्रॉन्ग अपना लेके आए ओपिनियन, लॉजिक तो लेके आए, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि हम किस चीज़ की आज़ादी चाहती हैं। और हर चीज़ की आज़ादी है, जैसे उन्होंने कपड़े पहने हैं, हमें भी आज़ादी है, हम जिस तरह की मर्जी कपड़े पहनते हैं, जैसे मर्जी तैयार होते हैं, सिगरेट पी रही हैं, सॉन्ग्स लगा रही हैं, नाच गाना इकट्ठे। ये औरत मार्च है, ये आप आज़ादी चाह रही हैं किसी। आज का कोई स्लोगन ऐसा जो आपको देख के लगा हो कि यार ये क्या हरकत की है? कुछ स्लोगन आपने देखा? मुझे लगता है कि औरत अपने लिए खुद कह रही है कि अफसोस मार्च होना चाहिए था इसका, जो है। मुझे तो ये औरत मार्च कहीं से भी नहीं लगा। आज आपने कोई डिफरेंट स्लोगन देखा? क्योंकि हर औरत मार्च में कोई ना कोई स्लोगन वायरल होता है। आज कोई डिफरेंट स्लोगन जिस पे अटेंशन आई हो, कोई याद हो अगर आपको? मेरा जिस्म कुछ इस तरह था। मेरा जिस्म कारी साहब की मर्जी। हाँ, मेरा जिस्म कारी साहब की मर्जी। तो ये क्या है, मतलब अफसोस। आपने वैसे इस स्लोगन का क्या वो निकाला, आपको क्या समझ आई? मुझे नहीं, मैं उनके माइंडसेट नहीं पढ़ सकती भैया, मुझे लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूँ कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ, तो मतलब कि आपका क्या एक इम्प्रेशन क्या हुआ, ज़हन में क्या सोच है कि ये क्या लिखा हुआ है? ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना हरकत है कि मेरा जिस्म कारी साहब की मर्जी। मतलब क्या, क्यों, क्या ही वजह है? अच्छा, वो एक मेरा ख्याल है कि वो तनकीदी ही करना चाह रहे थे, लेकिन एक चीज़ ये है कि बहरहाल ये उसकी तशरीह खुद भी नहीं कर पा रही कि
ظاہری بات ہے یہ لوگ کہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو بچوں کو اپنی فیملی کو لے کے آئیں اور وہاں پہ اگر اس طرح کے نعرے ہوں گے سلوگنز ہوں گے تو میں کیسے اپنی فیملی کو لا پاؤں گا کیونکہ خواتین کے رائٹس کے لیے اگر نکلنا ہے تو مجھے بطور جرنلسٹ سب سے پہلے ان عورت کے حقوق کی بات بھی کرنی چاہیے اور سب سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ اس میں حصہ لینا چاہیے لیکن یہاں پہ دیکھیں جس طرح سے خون آلودہ شلواریں کپڑے قمیضیں ٹانگی جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ الٹے سیدھے سلوگن پھر وہاں پہ گالم گلوچ لڑائیاں تو کون شخص ایسے ماحول میں اپنی فیملی کو لا کے عورت کے حقوق مانگے گا کیا نام ہے آپ کا سونیا سونیا عورت مارچ میں آئی ہوئی ہیں کیا لکھا ہوا ہے آپ نے سلوگن پہ عورت کی جگہ چار دیواری نہیں اسکول ہے بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اسکول اور تعلیم ہر شخص کے لیے ضروری ہے بیسک رائٹ ہے آپ عورت مارچ میں شرکت کے لیے آئی ہوئی ہیں جی ٹھیک ہے بہت سے لوگ بہت حالانکہ میں گراؤنڈ میں بہت سا کام کیا مجھے پتا ہے خواتین کو بہت سے مسائل ہیں بطور خاتون آپ کو کیا کیا مسائل ہے کیا بطور عورت خاتون ایک لڑکی کے طور پہ آپ کو اس سوسائٹی میں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن آج جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کا بیسک رائٹ ہے ایجوکیشن بالکل اور پشتون ویمن اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کی بات اگر ہم کریں تو وہاں پہ عورت جو ہے نہ اس کو اسکول پڑھنے دیا جاتا ہے نہ اس کو کالج جانے دیا جاتا ہے نہ ہی یونیورسٹی تو اگر وہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہوگی تو آپ کی جو اتنی سو بچوں کی پرورش کیا کرے گی سوسائٹی کو کیسے شیپ کرے گی تو وہ آگے نسل کو کیسے پڑھائے گی ٹھیک ہے اچھا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آ کے بہت سے لوگ اس کو اور رنگ دے دیتے ہیں اور رنگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں اس کو اور چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے پرستی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور چیزیں اس طرح کی ہیں وہ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں ہر بندہ اپنی ڈیمانڈ رکھے گا اپنے پرسپیکٹیو سے بولے گا تو مجھے لگتا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے تو ان کا مسئلہ وہ ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہ آپ اپنے مطلب کہ آئیڈیالوجی لے کے آئی ہیں اور آپ اس کے لیے نکلی ہیں مطلب کہ اچھا یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے مسائل ہیں بہت سے لوگ صرف یہاں پہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کی ان سے آئیڈیالوجی میچ نہیں کر پاتی کیونکہ ہم جس طرح کے معاشرے یا سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں بہن کہہ رہی ہیں آپ نے نام بتایا سونیا یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا سب سے امپورٹنٹ جو ایشو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہن بیٹی پڑھ نہیں پا رہی اس کو تعلیم نہیں مل پا رہی اور اگر اس کو تعلیم نہیں مل پا رہی تو وہ کل کو سوسائٹی میں کیا نکال لے کے آئے گی ایسے ہی اور کہہ رہی ہے کہ میں صرف اپنے مطالبے کو لے کے یہاں پہ عورت کے حقوق کے لیے کھڑی ہوں باقی وہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں میں اس کو آئیڈیالی یعنی میری جو نظریات ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتے میں اپنے نظریات لے کے آئی ہوں اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ ورکنگ وومین ہیں یس میں جاب کرتی ہوں اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ مجھے بتائیں کہ ورک پلیس کی کیا مسائل ہیں کیونکہ مجھے بھی بہت سی چیزیں پتہ ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ بطور خاتون آپ بتائیں گی تو لوگوں تک آواز پہنچے گی وہی مسائل ہیں جو باقی سوسائٹی کے مسائل ہیں جیسے گلی کے مسائل ہیں جیسے میل ایشو کے مسائل ہیں کہ میل جو ہے آپ کو انفیریئر ٹریٹ کرتا ہے آپ کا باس اگر میل ہے تو وہ آپ کو انفیریئر رکھے گا کیونکہ آپ ایک عورت ہیں نو میٹر کہ ہاؤ ہارڈ یو آر ورکنگ اچھا مجھے بتائیں کہ کیا مسئلے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا ہم بطور سوسائٹی اتنے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں کہ ہم ایک خاتون کو ورک پلیس میں ایکسیپٹ کر لیں یا ابھی بھی وہی مسائل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ماں بہن بھی کہیں جا رہی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک گروپ آف پیپل ہے جو تاڑ رہا ہے جو دیکھ رہا ہے جس کی نظریں مجھے چبھ رہی ہے آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے ڈیلی کرنا پڑتا ہے ایسا ہی ہے اچھا بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں آج یہ جو خاتون یہاں پہ کھڑی ہیں ظاہری بات کوالیفیکیشن ہوگی بیچلر ماسٹر کچھ کیا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں یہ حق کیسے مل گیا ان کو آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے کون سا کیسے مل گیا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہوئے وہ پڑھے لکھے ہیں ان کو یہ مسائل نہیں ہیں مطلب کہ یہاں پہ میں اپنے لیے نہیں آئی ہوئی میں ہر خاتون کے لیے آئی ہوں ہر پشتون لڑکی کے لیے آئی ہوں جو اسکول نہیں آئی آپ کو یہ مل گئے جی آپ ان کے لیے ہیں جن کو نہیں مل پا رہے جی بہت شکریہ تھینک یو سو مچ سونیا سے بات کر کے بڑا اچھا لگا بڑی پروڈکٹیو گفتگو کر رہے تھے اور اچھی بات کر رہے تھے عورت کوئی عیب نہیں جسے چھپایا جائے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا ہے یہ آپ نے اردو میں پڑھا ہے کوئی عیب نہیں جسے چھپایا جائے ہاں جی مطلب کہ آپ پردے کے خلاف ہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو زبردستی چھپائیں نہیں آپ ان کو گھر میں نہ بٹھائیں آپ ان کو تعلیم کا حق دیں ان کو صحت کا حق دیں آپ نے چھپایا کا مطلب کہ میں ایگزیکٹلی مطلب سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ چھپایا آپ پردے کے خلاف ہیں نہیں میں پردے کے خلاف نہیں ہوں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ ہمارے میں فرام کے پی کے ٹھیک ہے وہاں پہ جب عورت اس کو تعلیم پہ نہیں جانے دیا جاتا تاکہ وہ نظر نہ آئے سوسائٹی میں ٹھیک ہے اس کو چھپایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے اس کو چھپایا جاتا ہے اس کا مطلب نا لوگ چونکہ اور لے لیں
इसलिए आके पूछ रहा हूँ जी मैं इसीलिए आपसे आके पूछ रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि फलां साहब आपका इसमें गिरामी क्या है एहतशाम कि एहतशाम आया और उसने लिखा कि मतलब कि इससे जो इकाम तासुर जा रहा है वो ये जा रहा है कि आप औरत के निकाब या बुर्के के खिलाफ है। नहीं नहीं बिल्कुल मैं अगर कोई औरत पहनना चाहती है मैं उसके कभी खिलाफ नहीं जो और औरत नहीं मेरा पहनना कहना है चाहती कि ये जो पर्दा है या दाढ़ी रखी जाती है ये आप अपने दिल से रखते हैं। जी बिल्कुल अल्लाह ताला जब आपको हिदायत देता है बिल्कुल और दूसरे इसमें ये भी है कि जो औरत पर्दा करना चाहती है उसको हर दुनिया का हक है कि वो पर्दा करे, जो नहीं करना चाहती किसी को हक नहीं कि उसको फोर्स अच्छा करे। बतौर मुआशरा आप क्या समझते हैं कि हमारा मुआशरा कैसा है जहाँ पे जब एक खातून निकलती है मतलब कि आप अपनी माँ बहन के साथ निकलता हूँ तो क्या मसाइल का सामना करना पड़ा खातून को? देखिए यहाँ पे तो हम औरत को सबसे जो बुनियादी मसला है ना, औरत को हम इंसान नहीं समझते, हम उसको सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। हम उसको उसके जिस्म को मंटू ने कहा था ना कि औरत एक गोश्त की दुकान है और हम उसके बाहर खड़े कुत्ते हैं। तो हमारा मुआशरा जो एक्सट्रीम है वो इसी पे जा रहा है। यार वो औरत को हम उसके जिस्म को देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या खदोखाल है, हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, हम औरत के जिस्म से बाहर निकले नहीं। खान यूसुफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के पूरे औरत मार्च को जब से ये आगाज़ हुआ उस पर मौजूद थे। इनसे जानते हैं कि औरत मार्च के हवाले से इन्होंने क्या नतीजा अखज़ किया, क्योंकि औरत मार्च का अभी तक किसी को मतलब मकसद लोगों को समझ नहीं आ पा रहा। ख़वातीन को बहुत से मसाइल हैं, उन मसाइल को हल होना चाहिए, लेकिन हर साल हम देख रहे हैं कि औरतों के हकूक़ के नाम पे जो ख़वातीन निकल रही हैं, एक तो उनकी तादाद कम होती जा रही है और जो इस मुआशरे में खातून पिस रही है वो इन्हें अपना नुमाइंदा नहीं समझ रही, वो इनके कहने पे आ नहीं रही। इन्हें जिन लोगों को बुलाना पड़ रहा है वो चंद 3-4 औरतें हैं, उनको फ्रंट लाइन में बैठाते हैं, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं देते। और फिर मुझे रेहान ने बताया कि उनको पीछे जाके हज़ार रुपये दिया जा रहा है। और फिर उसमें से एक खातून जिससे रेहान ने बात की और उसने क्या बात बताई वो रेहान से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। भाईजान सबसे पहले बताएं कि औरत मार्च, मैं आपसे सवाल करूंगा क्योंकि अब तजस्सुस था कि यार औरत मार्च क्या, हमने कहा चलो देखते हैं औरत मार्च में क्या हो रहा है। हर एक तहरीक का उन्वान होता है, इधर का औरत मार्च है। आप मुझे बताएं औरत मार्च का मतलब क्या है? मतलब कि ख़वातीन के हकूक़, आज़ादी और इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। हकूक़ और आज़ादी किससे चाहिए? उस बाप से चाहिए जिसने आपको 26 साल पाला है, 24 साल पाला है, जिसने 23 साल, जिसने आपको एक कपड़ा पहनने के लिए दिए, जिसने खाने के लिए रोटी दी है, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया कि आप इधर आके बात कर सको। उंगली पकड़ के चलना सिखाया। क्या बात है, बच्चा जब पहली बार चलता है। उस बाप से आपको आज़ादी चाहिए या उस भाई से आज़ादी चाहिए जो अपना हक मार के आपको हक देता है, जो अपने आप को कम समझता है कि मेरी बहन पहले, उस भाई से आपको आज़ादी चाहिए? आप बताएं आज़ादी चाहिए किसे? माशरा, ये हमारा जो माशरा है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप बताएं पंजाब असम्बली, नेशनल असम्बली में मखसूस नशिस्तें किसकी होती हैं? ख़वातीन। ये अब मैं आपको गिनवा रहा हूँ, आप गिनते जाएं, हकूक़ गिनते जाएं जो इनको एक होता है ना कि एक साइड पर रख के एक्स्ट्रा मैं नहीं कहूँगा कि एक कहते हैं ना कि ऑनर में दिए, ऑनर में दिए जा रहे हैं। और दूसरा जब भी कोई वेलफेयर काम होता है, आप बताएं कभी ये कहा गया कि यार मुंडिया की शादी करा दी, यार बच्चियों की शादी करानी है? बिल्कुल ऐसे ही है। कितना ये माशरा औरतों को, बैंक में लाइन लगी है 45 बंदों की, एक औरत आएगी 45 के 45 पीछे होंगे, जिस उम्र के भी चाहे 70 साल का भी है, औरत को इज्जत देगा। यार आपको आज़ादी चाहिए किससे? मुझे तो इधर समझ नहीं है। मुझे जो समझ आई है इधर अली, मैं अब आपको बताता हूँ, इधर ढोल की ताप पर और बीट्स पर नाच गाने हो रहे हैं जी। मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि अली पानी मुझे पिला दो अदब से, तो समझ आती है। मैं कहूँ अली पानी पीना, मैंने अली मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे शर्म आ रही है करते हुए, ये देखते हुए शर्म आ रही है मुझे। रेहान साहब ने इतनी मजे की बात की है जिसको मुझे इंडोर्स करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा मैं आपसे ये कहूँ कि अली मुझे पानी चाहिए, तो आप मुझे जाके पानी का गिलास पकड़ा देंगे और कह रहे हैं अगर मैं आपको गुनगुनाते हुए कहूँ अली मुझे पानी ला के दो, और साथ रक्स भी हो रहे हैं, तो मैं कभी भी पानी ला के नहीं दूंगा। ये बात पानी क्या ला के दूंगा, पानी हो जाऊंगा साथ। अच्छा, मतलब कि आपको ये लग रहा है कि ये जो तकारीरें और परफॉर्मेंसेस हुई उसमें भी इनके, मैं आपको बता रहा का मकसद समझ नहीं आ सका। इनकी तकारीर आप सुन लें, इंतशार से भरी हुई है। क्या था अगर आप तकरीर में क्या था? भाई हमें आप पंचायत, आप सरपंच बनना चाहती है क्या आप बताएं एक औरत वेल्डिंग कर सकती है? पता नहीं, अब करना चाहे तो कर ले। भाई मैं अपनी वालदा को वेल्डिंग नहीं करने दूंगा जी। मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं एक मर्द होते हुए औरत को वेल्डिंग करने दूंगा। आपको क्या बराबरी के हकूक चाहिए? आप बताएं क्या बराबरी के क्या हकूक चाहिए? मतलब कि देखें आप, एक शख्स, मैं उसको देखा कि वो अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए एक मेन सीवरेज लाइन में घुसा हुआ था, उसका तकरीबन यहाँ तक जो है वो अंदर वो गलीज पानी में था, अपने बच्चों का रिस्क कमा रहा है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि उस जगह पे कोई औरत वो मेहनत कर रही हो। मैं एहतरामन औरत को बैंक की क्यू में मौका दूंगा कि वो पहले जमा करवा ले, किसी माँ बहन है। अच्छा, एक और औरत मार्च में इधर, इसको अगर मार्च कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा,
नाजेबा अल्फाज, कितने इधर जर्नलिस्ट को आज गालियां दी गई हैं, अच्छा धक्के दिए गए हैं, खुद ये धक्के देंगी, खुद ये फिजिकल होंगे आपके साथ। अगर हम एक सवाल कर रहे हैं तो भाई हमने हरास कर दी, अच्छा ये अच्छा कहाँ का इंसाफ है? मुझे बताएं कि वो मैं देख रहा था कि खातून से बात हो रही थी, फिर उस दौरान उन्होंने उनके एक साहब थे, उन्होंने आपको गाली भी दी, वो क्या मामला था? देखिए गाली को नाजेबा अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। मैं आपको बताता हूँ वो वक़ुआ क्या हुआ, वो वाक़या क्या था। उस लड़के ने, अब मुझे तो पहले ये डिफाइन नहीं हो रहा था कि वो लड़का है लड़की, एहसास के तौर पे मैंने पूछा कि यार भाई ये टेप क्यों लगाई है? मेरे से उम्र में काफ़ी छोटा था, मैंने कहा यार ये टेप क्यों लगाई है यार? बच्चा था मतलब कि? बच्चा सा था, मैंने कहा टेप क्यों लगाई है आपने? टेप उतार के उसने आगे से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल की। गाली? यार आप देखें, ये अगर वो अल्फाज कहे, हाँ ये अपने घर अपने वालिद को कह सकता है? वो अपने वालिद को कहेगा, अपने भाई को कहेगा? ये तरबियत है इनकी औरत मार्च की। औरत मार्च जो है ना मार्च है, अगर इसे मार्च कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कोई भी तहरीक चलती है, जब आंटी जो थी जिनसे आपने बात मैं की, आपको इसको लेट मी कंप्लीट, कोई भी तहरीक जब चलती है ना, जी जी उस तहरीक के अंदर अगर वो तबलीग जब आप जारी रखते हैं वो मुस्बत होती है, कोई इसके अंदर आप इनकलाब लेके आते हैं तो उसके अंदर कसरत आती है, कसीर जुड़ते होती हैं। जाती है। इधर तो भाई कम होते जा रहे हैं। टोटल 100 बंदा था आज, अब 150 200 होगा। देखिए 100 ज्यादा नहीं था। कितने लोग हैं जिनका हक नहीं मारा गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ रिकॉर्ड है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। माँ जी उसी एक लेन के अंदर सब के अंदर वो जा रहे थे लाइन बना के, माँ जी को उन्होंने हाथ से पकड़ा हुआ। तो माँ जी से मैं रिक्वेस्ट की, माँ जी वैसे बात करेंगे। क्या माँ उम्र जी- थी? बड़ी उम्र की थी? माँ जी डेढ़ उम्र की थी, ठीक है, काफ़ी ठीक अच्छी है, पक्की ठीक है, उम्र की थी। ठीक है। माँ जी से मैंने कहा माँ जी मैं आपसे बात कर लूँ? ये भाई साकिब भाई, जी, जी। इनकी मेहरबानी, इन्होंने बात करवाई। तो मैंने उनसे कहा कि आप बात करेंगे? बेटा मैं क्या बात करूंगी। मैंने कहा माँ जी आप इधर अपना हक लेने हैं, कुछ तो बात करें। कहा बेटा पूछे आप क्या कहते हैं। मैंने कहा माँ जी औरत मार्च क्या है पुत्र, मैंने नहीं पता है लेके आए ने। ये उनके अल्फाज सुनते जाए आप। अच्छा फिर मैंने कहा कि आपका खावन आपको प्यार करता है? कहा जी बिल्कुल करता है। फिर मैंने कहा आपका भाई आपको प्यार करता है? कहा बिल्कुल करता है। बेटा जी बिल्कुल करता है। मैंने कहा क्या महीने बाद जो चमा पूंजी वो एक महीने की जो खिदमत करता है आपके लिए, बाहर 24-24 12-12 घंटे बाहर की जो जलालत आपके लिए सहता है, और फिर उसके बाद जो उसको उजरत मिलती है आपके हाथ में आके रखता है? कहा जी बिल्कुल रखता है। मैंने कहा माँ जी फिर आज़ादी इधर क्या कर रहे हैं आप? औरत मार्च में क्या कर रहे उन्हें हैं? नहीं पता था? उन्हें पता ही नहीं था मुझे किसने लेके आया गया। जो आपकी बात इधर शख्स मैंने खुद भी नहीं देखा, मैं आपको बताऊं, उसने बताया कि कैरी डब्बे में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। वो गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें ला के लेके आए होंगे, उन्हें तो पता ही नहीं कि आज उनको एक वो केस के तौर पे वहाँ पे रखा हुआ है कि ये 3-4 गरीब हमने बुलाए हैं। बहरहाल यहाँ पे ये बताएं कि औरत मार्च में जो आज़ादी चाहिए, क्या डांस करके आज़ादी मिलेगी? क्या ऐसे झूम के आप ठुपके लगा के? ये ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई मुतालबा है तो सुलझे हुए तरीके से एक और आप देखिए मैस मीडिया का क्या काम होता है। ये मीडिया का काम है कि पैगाम रसाई, आपका पैगाम हम लोगों तक पहुंचाए। आप इधर बात करें, आप बताएं कि यार हमें ये हकूक चाहिए। जब मीडिया इनके पास आती है, जैसे ही मीडिया इनके पास हाजिरी लगाता है, खवातीन आती हैं, भाई उनके आते हैं, जब भी आते हैं उन्हें तो एलर्जी है जी, डायरेक्ट खारिश होने लग जाती है उन्हें जी। नहीं किसी वो खुद आगे ऐसे धक्का देके तो पुलिस वाले कहेंगे कि इसको पकड़े जरा। ये ठीक कह रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कैमरे के खातून ने आगे देखिए किसी के साथ भी आप किसी की प्रॉपर्टी को, जब आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, आपने भी किसी को कुछ नहीं कह रहा, आप स्लोगन ला के ऐसे कैमरे क्या कर रहे हो, ये ओ कपड़े इधर, अगर आपको अपना इतना ही ख्याल है कम से कम जिन कपड़ों में आए हैं वो तो ढक के आए। चले बहरहाल बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रेहान खान यूसुफ ज़ई मौजूद थे। इसको वाइंड अप करता चलूं, शर्म आई है मुझे इंतहाई, आज औरत मार्च पे आके शर्म आई है। अच्छा मुझे बताएं, आप अपने यहाँ पे औरतों के बहुत से मसाइल हैं, मानते हैं आप? देखिए ख़वातीन के मसाइल हैं, हाँ या ना में? मैं अब आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मसाइल है। आप बताएं कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में औरत की इस्मत, उसकी इज्जत महफूज रहे। बिल्कुल। आप उसी औरत के हकूक़ के लिए जो मार्च हुआ उसमें अपनी फैमिली को क्यों नहीं लाए? सर मैं क्यों लाऊं इधर? आपको खातून के हकूक़ नहीं चाहिए? सर हम हकूक दे रहे, आप दे रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिल पा रहे उनके लिए आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं लाए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सर औरत देखिए मैं अब आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। 2 मार्च होते हैं, आज ये 12 फेब को हुआ है, ये होता है 8 मार्च को। वो रमज़ान की वजह से एक इन्होंने, चलो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, बहुत मेहरबानी, रमज़ान का आपने एहतराम किया। रमज़ान का एहतराम करते हुए 8 मार्च को नहीं हुआ। 8 मार्च को 2 मार्च होते हैं, आपको पता हो।
एक हया मार्च एक होता है हया मार्च और एक होता है औरत मार्च। हयात मार्च क्यों होता है? मैं हया मार्च में अपनी लेके जाऊंगा, एक मैसेज दूंगा। ये कह रहे हैं कि जो माहौल है, मैं उस माहौल में अगर वो मुझे लगेगा कि फैमिली ओरिएंटेड माहौल है तो मैं अपनी घर की खवातीन को बताएं, औरत को इस्लाम ने इज्जत दी है। औरत को आप बताएं, कफन में जो है एक चादर औरत की इजाफी होती है। औरत को देखिए, औरत के जो मानी है ना वो छुपाने के है, बरहना करने के नहीं है कि औरत ऐसे बरहना हो माशरे में आ जाए। और औरत का बरहना होना, आप मुझे बताएं, जब पेट्रोल के अंदर एक चिंगारी लगेगी तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा। औरत का काम है छुपना। देखिए अम्मा खतीजा जो है, ये कहते हैं ना कि जॉब्स और का, हम अगर अपने इस्लाम को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम हमारे नॉर्म्स के हैं। सबसे पहला तो सवाल ये है कि आप मुसलमान भी हैं कि नहीं है। देखिए हकूक़ सबको मिलने चाहिए। जो मुसलमान इनमें, उनसे तो पूछे यार, आप अपने हीरोज़ को तो पूछे वो क्या है। अम्मा आयशा ने तब क्या तिजारत की, आप करें तिजारत, बिल्कुल ऐसे आप तिजारत करें। बोला जाए इन पे कम है, जितना अफसोस किया जाए इन पे चीख वो देखिए वो फिर उनकी तस्वीरें बना रहे हैं, वो फिर उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। यार ये क्या कर रहे हैं? इनके दिखाएं, कैमरा दिखाएंगे। ये देखें, ये खवातीन आके वीडियोस बना रही हैं। यार ये क्या है? मैं अगर एक रोड पे साइड पे खड़े होके एक बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपना मौक़िफ़ देता हूँ, मैं आपको अपना मौक़िफ़ दूंगा, इधर आए जी। यार ये बदतमीजी है, बदतमीजी भी है कि ये देखें। एक मिनट मैं चाहूँगा आप रोड दिखाएं। ये रोड बिल्कुल खाली है, ये रोड खाली है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। एक खातून यहाँ से आती है खाली रोड से और मेरी तस्वीर खींच के लेके जा रही है। क्या कह रही है जी कि इनकी तस्वीरें खींच के एसपी शहरबानों को भेजूंगी। भेजे बंदा के वो हमें नहीं जानती, या उन्हें पता नहीं कि हम मीडिया पर्सन है। शहरबानो जो है लॉ इन्फोर्समेंट कर रही है ना, जितना ख्याल रखना, जितना महफूज रखना उनका मेरे लिए है, उतना इनका जरूरी है। आप इंसाफ करें। अच्छा बिल्कुल, एक चीज़ है कि यहाँ पे जिस तरह से किसी खातून के साथ बदतमीजी करना एक संगीन जुर्म है, उसी तरह किसी के ऊपर उसका झूठा इल्ज़ाम लगाना उससे भी बड़ा जुर्म है। अब ये खातून, मैं एक साइड पे खड़ा हूँ और आके मेरे तस्वीर उतार रही है। क्यों जी भाईजान, मैं बिल्कुल साइड पे खड़ा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मेरी भी तस्वीर लेके गई है, कहती है एसपी शेरबानो को देनी है मैंने। हमारी बहन है एसपी शेरबानो साहिबा, हम उनको खुद यानी कि तस्वीर अपनी भेज देंगे और हम उनसे पूछेंगे कि अगर मेरी तस्वीर रोड पे खड़े कोई खातून आके उतार के ले जाए तो मुझे ना, हम खुद पेश हो जाते हैं, हम चोर थोड़ी हैं। नहीं, मैं एक वैसे पूछ रहा हूँ, मैं वैसे एक बात पूछ रहा हूँ कि मैंने कवरेज की है, मैंने कोई गाली थोड़ी दी है। नहीं, मैंने तो मौका अच्छा एक और चीज़ है, किस लिए कर रहे हैं इस हवाले से मैं अगर मेरी पंजाब पुलिस की इंतजामिया से मैं इंशाल्लाह मुलाकात करके दरख्वास्त करूँगा, मुझे भी बताएं कि अगर जैसे एक खातून रोड पे खड़ी है और कोई आके उससे बदतमीजी करता है या आके उसकी कंसेंट के बगैर उसकी तस्वीर ले लेता है तो वो एक जुर्म कंडक्ट कर रहा है। और मैं बतौर शहरी, वो मेरी बहन हो या ना हो, मैं वहाँ पे जाके उस बदबख्त इंसान को गिरबान से पकड़ूंगा। लेकिन अगर बतौर शहरी मैं रोड पे खड़ा हूँ और कोई खातून आके मेरी तस्वीर ले रही है मेरी इजाज़त के बगैर, मुझे नहीं पता कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करके। AI का दौर है, मुझे बहुत से थ्रेट्स हैं, बहुत से और मामलात हैं, मेरी मतलब कि मैरिड लाइफ भी है, कोई आप एक तस्वीर से कुछ भी बना सकते हैं। तो क्या ये जो पाकिस्तान का कानून है वो मुझे राइट देता है कि मैं उस खातून के हवाले से जाके कंप्लेन कर सकूँ या पूछ सकूँ कि भाई एक खातून भी मेरी प्राइवेसी को क्यों ब्रीच कर रही है या मेरे कंसेंट के बगैर क्यों तस्वीर उतार रही है, और फिर वो साथ धमकियाँ दे रही है, फिर वो जब और कुछ नहीं मिलेगा वो जाके कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, हमने पहले भी देखा वो कर रही है। फिर DSP साहब को जाके कहेंगे कि छेड़ है। DSP साहब ने आके मुझे ये शिकायत की कि यार ये आके झूठे इल्जामात लगा रही है और मुझे बताया मैं क्या करूं। एक DSP साहब काजमी साहब थे, उन्होंने एक बहन को कहा कि बेटा आप थोड़ा सा आगे हो जाए, उसने कहा देखा ना मर दो मैन। ज़का SHO को, DSP साहब को, इन्होंने मेरा जाके बाकायदा उधर भी तस्वीर ली है और उन्होंने कहा कि ये लड़का हमें हरास कर रहा है। क्या किया था आपने? कुछ नहीं, मैंने कहा बताएं कि हम आपकी आवाज़ बनते हैं, ये 7 साल से औरत मार्च चल रही है, हर साल चलती है, आपके मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे, आपकी आवाज़ जो है आवाम तक मैं पहुंचाऊंगा, मैं आपकी आवाज़ बनने आया हूँ, आप अपना मौक़िफ़ दें। आप अपना मौक़िफ़ नहीं दे रही, आप तस्वीर ले रही हैं और कह रही हैं कि मुझे हरास किया गया है, मेरी इज्जत को उछाला गया। मैंने उनको कहा कि आपको मैं टच भी ना करूँ, आप SP हनान को या SHO ज़का को कहेंगे कि इन्होंने हरास किया, पर्चा हो जाएगा, मेरे यहाँ कपड़े फाड़ दें, तो मैं अगर कहता रहूंगा तो लोग कहेंगे कि इज्जतदार की आप कैसे उछाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि औरत मार्च वालों, मैं आपसे अब एक सवाल है, आप सुन लें। जब एक औरत के साथ जुल्म होता है, कहाँ होते हैं औरत मार्च वाले? रोडों पे क्यों नहीं निकलते आप लोग? यार हम तो जाके उस टाइम भी उनकी आवाज मान रहे होते हैं। मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म, मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपसे सवाल कर रहा हूँ, हम तब भी डे नाइट 6-6 घंटे 6-6 दिन
महीना 2-3 महीने हम खड़े रहते हैं और आवाज़ का परचम हक का परचम हमने बुलंद किया होता है। आप तब कहाँ होते हैं? जब एक छोटी स्कूल की बच्ची के साथ ज्यादती होती है तब इधर एहतजाज क्यों नहीं होता? सर क्यों नहीं होता एहतजाज? उस दिन 8 मार्च नहीं होता, क्योंकि तब फंडिंग उस दिन नहीं आती। 9 मार्च नहीं होता, ये 8 मार्च सालाना नहीं फंडिंग आती है, मतलब सालाना फंडिंग आती है, उसमें से कुछ पैसे इधर लगाए जाते हैं, कुछ बचा के पूरा साल घर चलाया जाता है। सर मुझे ये बताएं, जब डस्का में केस हुआ था वो भी औरत नहीं औरत को मारा था, जी, जी। बेटियों ने बाप को मारा, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। तब ये कहाँ पे होती हैं? जब औरत के साथ ये सब कुछ होता है तब ये कहाँ पे होती हैं? आज इनको औरत मार्च याद आता है। जब अब मैं आपको आज की बात बताता हूँ, 2 बजे जब यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे थे, इर्तिजा भट्ट जो आप उन्हें जानते बड़े अच्छे थे, भाई है जी, एंकर हैं बिल्कुल, यहाँ पे आके भी वो खड़ा हुआ है। और मैं बताऊं कि वो बंदा वुमेन एम्पावरमेंट को मानने के हवाले से अगर मैं कहूँ कि जिसको मैं जानता हूँ, वो खातून की इज्जत के हवाले से मैरिड है, जितनी इज्जत जितना प्यार वो अपनी बीवी और अपनी बेटी से करता है, मैं उस बंदे को मतलब कि मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने उससे ज़्यादा बहुत लोग अपनी फैमिली के साथ प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। उसका शुमार उन तमाम माँ बाप में होता है जो अपनी फैमिली को जो है इज्जत देते हैं। और आपने देखा कि वो क्या अपनी फैमिली के बारे में कितना कंसर्न है। बिगनिंग थी अभी इनके मार्च की, वो आई है, तस्वीर खींची है, वहाँ से लेडी एक ऐसे चौथी होने जाके कहती थी ये गंदे इशारे कर है। यार मैं इस बात का गवाह, गंदे इशारे की डेफिनेशन क्या है? उसकी नजर में ये था जी ये आया क्यों है ना, वो चाहती थी कि ये आया। सर बकायदा इनके साथ हुआ है, हमें मेरे किए गए कैमरे ने ये रिकॉर्ड किया है। इन्होंने रिकॉर्ड किए गंदे इशारे। मैं आपको बताता हूँ जो हमें हुए हैं, हमें जो गंदे इशारे हुए उन्हें गंदे इशारे कहते हैं। ये है झूठे, ये है काज़िब। ये आके लग जाए तो ये औरत है, हम लग जाए तो वो नहीं हम तो अल्लाह माफ करे, हमने नहीं एक बात कर रहा हूँ, नजरिए को देख लें। मीडिया का काम क्या है? आपकी आवाज ही हमने आगे पहुंचा दी। आप जब वहाँ पे गए हैं, आपको धक्के पड़े हैं, ऐसे ही है। पड़े हैं, कितने धक्के पड़े हैं? वो हरेसमेंट नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल वो हरेसमेंट नहीं वो थी। भी मेरी भी तो इज्जत है ना। हमने मैं भी किसी तो को harass धक्का हो नहीं दिया, हमने हाँ। किसी को टच नहीं बिल्कुल ऐसे ही किया। है। हमें कितने लोगों ने टच किया, माइक को हाथ डाला, कैमरे छीने, तो क्या वो हरेसमेंट नहीं है? वो भी harassment। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जब मेरे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि यदि शक्ल देखो जी, अली को कह रहे थे। मुझे कहती थी शक्ल, मैं कहा मैं आपको ये कहता देखें, एक मिनट, मैं औरत मार्च वालों को कहते हैं ये देखें, ये इंतहाई खूबसूरत शक्ल है। जितनी शक्लें आज आई हुई थी ना, जितनी रंग भरी, मैं अगर वो अजीबो लेते हाँ तो फिर हम कहते कि ये शक्ल अजीबो गरीब शक्लें थी जिनमें पता नहीं हम फर्क नहीं कर पा रहे थे खातून कहा जाए या मर्द कहा जाए। ये पता लग रहा है कि मर्द है भाई, देख ले हर शख्स को इज्जत देता हूँ ना, मैं उसके रंग नस्ल और उसके कपड़े से उसको जज नहीं करता। हम भी इज्जतदार। मैं 1 मिनट सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहा हूँ। जब उस खातून ने मुझे कहा इसकी शक्ल देखो, तो वहाँ पे SHO ज़का मौजूद थे, उसने कहा कि आपने अपनी तरबियत का सबूत देना है। तो मैंने कहा सर अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको जवाब में कह दूं कि आप अपनी शक्ल देखें, तो ये उतना सा क्लिप लगा के मुझे दिखाएंगे, देखें जी औरत के चेहरे पे, हुस्न पे, मेकअप पे बात कर औरत की तजलील कर दी। ठीक है, ज़का साहब ने मुझे कहा कि मैं वहाँ से खामोशी से आ गया, तो ज़का साहब ने मुझे कहा SHO है, उन्होंने कहा कि आज आपने अपनी तरबियत और तालीम का सबूत दिया। और मैंने फिर वहाँ पे बताया कि जो डिग्री होती है वो एक पीस ऑफ पेपर होता है। कोई भी शख्स अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ है या इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है या इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, ये डिग्री लेके साथ नहीं घूम रहे होते। आपका रवैया, आपकी तरबियत, आपकी हरकतें बताती हैं कि आप कितने ख़ानदानी हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। डिग्री कोई नहीं साथ लेके घूमता। एक चीज मैं ऐड ऑन ठीक है, हमने वहाँ पे मैं बार बार दिखा रहा था कि आप इन दोनों ग्रुप्स को दिखाएं और लोगों को फैसला करने दें कि इनमें से पढ़ा लिखा कौन सा लग रहा है और जुहला कौन लग रहा है। यानी मर्द इंसान नहीं है, उसकी तजलील नहीं है, औरत की तजलील है। मर्द को जितना मर्जी धक्के दे दो, उसकी शक्ल पे बात कर लो और उसको जो है उसके कैमरे पे हाथ डाल लो, माइक पे हाथ डाल लो, उसके कोट से बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सादिक भाई थैंक यू सो मच। तमाम अहबाब यहाँ पे हमारे भाई मौजूद थे। औरत मार्च पे जो कवरेज की वो इंशाल्लाह आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के थ्रू हम के प्लेटफॉर्म तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।